Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO question papers one by one. In each video basically we are solving one question every time, okay? So guys, so far we have solved INMO 2002, INMO 2004 completely कर चुके हैं हम. You can see those videos on the VOS channel, right? So right now we are going through the INMO paper of 2005, INMO exam paper of 2005. So far we have already covered the first 4 questions of INMO 2005. In today's video, we are going to solve INMO 2005 का 5th question. Okay. So guys, today's question is basically आप देखोगे अगर question के अंदर it's not specifically of some chapter basically. आप नंबर थ्योरी का लॉजिक समझ सकते हो. It's more of लॉजिकल कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट कोई थ्योरम यूज हो रहा है कुछ ऐसा है. इट्स ऑल अबाउट जनरल लॉजिक. आपका माइंड कितना अच्छा उसको लॉजिकली सोच सकता है एंड हाउ यू कैन एनालाइज द थिंग, राइट? दैट इज ऑल देयर इज टू टुडेज क्वेश्चन जो होगा. ओके एंड okay, before starting let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and guys, since graduating I've been teaching mathematics for various competitive exams like IIT JEE, KVPY and Maths Olympiads, right? So throughout the years I have the privilege to teach very good students who have got very good ranks, right? So yes, the highlights would be the students who got AIR 9, 37 and 81 in IIT JEE advanced, right? So those are the highlights, and the student also went up to the camp of INMO as well. The student who got 81st rank also went on to INMO camp, right? Although he did not make it to the selection of the top 6, but he went on to the camp. That is, he was in the top 35 of India, right? Okay, so guys, let's see today's question. क्या है आज का question? वो देखते हैं पहले. Okay, so this is today's question, guys. Okay, so let's read it first. Okay, so question is, let x1 be a given positive integer. कोई given positive integer x1 है. A sequence xn starting from n equal to 1 to infinity, basically starting from x1, x2, x3 up to infinite terms का series sequence है, right? As shown, x1, x2, x3 and so on, of positive integers. So some things that we should cover, be careful about. Positive integers हैं and x1 भी already positive integer था आपके पास, right? The things that you should be wary of is such that xn for n greater than equal to is obtained from xn minus 1 by adding some non-zero digit of xn minus 1. मतलब xn, एक बार अगर आपको x1 पता है तो x2 कैसे मिलेगा? x1 plus some non-zero digit of xn minus 1. पूरे xn minus 1 में से कोई नॉन जीरो डिजिट अगर आप उसमें ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा x2. सो आवर क्वेश्चन हियर इज प्रूव दैट द सीक्वेंस हैज एन इवन नंबर. कि इस पूरी सीक्वेंस ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन में कोई तो इवन नंबर होगा ही होगा, ये प्रूव करना है. ओके, आई एम सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड. या ओके, एक तो कोई ना कोई इवन पॉजिटिव नंबर होगा ही होगा, एक तो ये प्रूव करना है आपको. And the second thing, the sequence has infinitely many even numbers. तो sequence के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ऐसा नंबर आएगा जो even है. Rather there will be infinite such numbers. Okay. So guys, I would suggest that you guys please pause this video. Pause करो इसको and please attempt this question for 1.5 hour at least. मतलब जब तक होता नहीं है तब तक तो करो ही करो. But 1.5 hour का time at least दो इसको अगर solve नहीं हो पा रहा है तो. If you are able to solve it, well and good. Then watch the solution and if it's correct you will be able to know it. और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है गाइस, प्लीज अटेम्प्ट करना इसको 1.5 hour. ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा सोचा 10 मिनट, नहीं समझ में आया कुछ तो सोल्यूशन देख लिया. प्लीज डोंट फॉलो दिस अप्रोच. बिल्कुल फायदा नहीं होगा आपको इस तरह से, राइट? प्लीज गिव दिस क्वेश्चन अ वेरी गुड अटेम्प्ट. 1.5 hour का जैसे मैं बोल रहा हूँ कम से कम देना है. दैट इज एटलीस्ट. अगर आप ज्यादा देना चाहते हो ज्यादा दो टाइम. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन डिजर्व्स सच काइंड ऑफ टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई इजी पेपर है, स्कूल का पेपर तो है नहीं, देखो, राइट? कि पढ़ा क्वेश्चन और हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड टाइम ऑन दिस क्वेश्चन एंड लेटर ऑन देन ओनली वॉच द सोल्यूशन. ओके, पॉज कर दो इस वीडियो को, आपके पास लिबर्टी है इस चीज की, एंड देन ओनली वॉच द सोल्यूशन आफ्टर गिविंग इट अ वेरी गुड अटेम्प्ट. ओके, ऑलराइट. सो गाइज, आई होप सबने अब अपना अटेम्प्ट दे दिया इस क्वेश्चन को. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन आउट नाउ.
सो गाइज लेट्स अज्यूम हम ये चाहते हैं ना कि सारे के सारे नंबर ऑड हो, लेट्स से हमें ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि एक इवन होगा. सो लेट्स अज्यूम देयर इज नो इवन नंबर, राइट, ऑल आर सपोज टू बी ऑड. तो गाइज एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, सारे डिजिट्स ऑड नहीं हो सकते, राइट. फॉर एनी नंबर ऑल द डिजिट्स कैन नॉट बी ऑड, बिकॉज उसके नेक्स्ट नंबर जब बनाएंगे आप, अगर सारे डिजिट्स ऑड है एक ऑड नंबर के, तो अगर सारे डिजिट्स ऑड है और जो गिवन नंबर ऑड नंबर है उसके अंदर कोई भी एक डिजिट ऑड जब आप ऐड करोगे इट विल बिकम एन इवन नंबर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि सारे के सारे ऑड डिजिट्स तो हो नहीं सकते एक नंबर के, क्योंकि अगर हो गया तो फिर इवन आ जाएगा, पक्का मिल जाएगा फिर तो इवन, राइट. देन इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग. सो गाइज हमें सोचना है, अब हमें ये सोचना है, तो लेट्स एज्यूम कि नो नंबर इज इवन, राइट. सारे ऑड हैं, नंबर सारे ऑड हैं, उसके अंदर डिजिट्स तो इवन हो ही सकते हैं बट नंबर सारे ऑड हैं. और एक चीज और क्लैरिटी चाहिए. तो गाइज एक बात सोचो, लेट्स एज्यूम सम नंबर x1, ठीक है, पहले तो एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट xi, राइट, और ये जैसे ये xn दिया हुआ है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी आर ऑड, लेट्स से ऑल ऑड है ना. सो गाइज x1 को मैं डिनोट करता हूं कैसे, लेट मी राइट द x1 नंबर एज दिस थिंग, o1 o2 अप टू om. मतलब गाइज कोई तो नंबर ऐसा होगा x1 कि उसके अंदर एक इवन डिजिट तो होना ही पड़ेगा. एज आई सेड कि एटलीस्ट एक इवन डिजिट होना पड़ेगा ना किसी भी x1 के अंदर, लेट्स से x1 के अंदर एटलीस्ट एक इवन डिजिट होना पड़ेगा, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर सारे डिजिट्स ऑड हुए फिर तो उसका वाला नेक्स्ट वाला नंबर पक्का इवन हो जाएगा ना, क्योंकि ऑड प्लस वन ऑफ द डिजिट, एनी डिजिट यू ऐड इट इज गोइंग टू बी ऑड, तो ऐड होके इवन हो जाएगा. सो आई नो दैट x1 मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन इवन नंबर, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूं, उस इवन नंबर से पहले गाइज हो सकता है कुछ डिजिट्स हो, वो सारे तो ऑड होंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, मैं एक e डिफाइन कर रहा हूं यहां पे इन द नंबर x1, लेट मी राइट एन डिजिट e, ये e डिजिट्स लिख रहा हूं गाइज. सो गाइज जो e है दैट इज द लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट, उसके लेफ्ट साइड पे और भी ऑड डिजिट्स हो सकते हैं, राइट. सो दिस e रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट. ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, e इज द लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट. ओके, सो e रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट इन x1. तो e से लेफ्ट साइड पे कोई इवन नहीं है, बस ये बोलना चाह रहे हैं. तो कोई तो होगा ना इवन लास्ट डिजिट लेफ्ट साइड पे, ठीक है. और फ्रॉम द लेफ्ट यू कैन से द फर्स्ट इवन डिजिट कोई e होगा, उससे पहले हो सकता है कुछ और डिजिट्स हो. Those I have represented with O1, O2 up to OM. I am just assuming M odd digits हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है बहुत सारे हो, या फिर 2-4 ही हो, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट. And after E, let me write D1, D2 up to DK, ठीक है. So guys D1, D2, D3 up to DK क्या है, D1 और D1, D2 ये सब क्या है up to DK. What are these? These digits can be either odd or even, but DK will be odd for sure, right? ये DK minus 1 तक लिख देता हूं. All these are either even or odd. I'm not concerned with that, right? And this DK is of course odd, right? वो तो odd ही होगा because number तो odd चाहिए ना मुझे, right guys? यहां तक तो समझ में आ गया. So हमने first number assume कर लिया कुछ इस तरह का जिसके सारे digits कुछ तो लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट है वो e है, उसके लेफ्ट साइड पे कुछ डिजिट्स होंगे तो वो ऑड होंगे, और उसके राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं दोस आर ईदर इवन और ऑड. आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम, राइट. गाइस एक बात सोचो, e क्या है, लेफ्ट मोस्ट इवन डिजिट है, वो मत ध्यान में रखना बस, ठीक है. उसके लेफ्ट साइड पे और इवन डिजिट नहीं होंगे, बिकॉज अगर कोई होगा तो वो लेफ्ट मोस्ट इवन हो जाएगा, राइट. सो गाइस एक बात सोचो, x1 से नेक्स्ट डिजिट कैसे मिलेगा, x2 कैसे मिलना है. I have to add at least one even number, क्योंकि देखो odd number ये already है, अगर मुझे odd ही बनाते रहना है, if I have to keep on forming the odd numbers, I will be needing to add an even number to it. Even digit ही add कर सकता हूं. So what are the even digits that I could add to it? ठीक है, x2 या कोई अगले टर्म्स पता करने के लिए I'll have to add at least 2 and maximum 8, right?
सो दीज आर द डिजिट्स दैट आई कुड ऐड. 2 4 6 8 ऐड कर सकता हूं सिर्फ, राइट. ओनली दीज कैन बी एडेड. मैं लिख देता हूं, ओनली दीज कैन बी एडेड, राइट. दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना. ओनली 2 4 6 8 कैन बी एडेड, अदरवाइज इवन आ ही जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो गाइस सोचो, जब आप ये 2 4 6 8 ऐड करते जाओगे, है ना, तो जब आप ऐड करते जाओगे 2 4 6 8 2 4 6 8, कोई भी इनमें से कोई भी एक डिजिट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू आर कीप ऑन एडिंग इवन नंबर्स, राइट. 2 4 6 8 में से कोई ना कोई एक डिजिट, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग डिजिट्स ऐड होते जा रहे हैं, राइट. सो इवेंचुअली गाइस जब करते जाओगे इस तरह से ऐड, डोंट यू थिंक इवेंचुअली आपको एक XR तक पहुंच जाओगे, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, O1 O2 अप टू OM. ये तो यहां तक ही रहेगा, इवन डिजिट भी शिफ्ट चेंज नहीं होगा अभी तक, है ना, इवन तक नहीं पहुंचे. जो ये लास्ट के डिजिट्स हैं गाइस, DK वाज सम ऑड, राइट. DK वाज सम ऑड नंबर आउट ऑफ 1 3 5 और 7, उनमें से कोई एक नंबर था. सो गाइस देखो, अब आप लॉजिकली सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से द लास्ट 3 4 नंबर्स आर लाइक समथिंग दिस, लाइक दिस 6 2 4 5 7 1. लेट्स से ये था, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग 6 डिजिट्स. दीज आर फ्रॉम D1 DK, ये D1 से लेके DK लिखा हुआ है. लेट्स से दीज आर फ्रॉम D1 D2 अप टू DK. लेट्स से गाइस जब आप इसमें ऐड करते जाओगे 2 4 या 6 या 8 जब करते जाओगे, don't you think you'll reach some point like this 99999 and some last digit, some x नहीं तो मतलब z लिख लेता हूं, चलो some z where z will be some odd. क्योंकि गाइस यहां से यहां में आप डिफरेंस देखो कितना है. what is the difference between the two numbers? ठीक है, that will be 3. सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक है. 9 - 2 is 7, 9 - 4 is 5, 9 - 5 is 4, 9 - 7 is 2, and z is odd, let's say that is 1 3 7 और 8, है ना. तो उसमें से जब आप माइनस करोगे, द लास्ट डिजिट है 0 2 4 और 6. सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, द लास्ट डिजिट विल बी 0 2 4 या 6. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज गाइस, ये जो नंबर मिल रहा है आपको, 6 डिजिट नंबर जो मिल रहा है, ये इवन ही आ रहा है ना, इवन आ रहा है. सो डोंट यू थिंक जब आप 2 4 6 या 8 कोई भी एक डिजिट, जनरली कोई भी, है ना, ऐड अगर करते जाओगे इसके अंदर, फाइनली यू विल रीच अ स्टेज जब जो लास्ट के ये डिजिट्स हैं, D1 से लेके DK -1 जो डिजिट्स हैं, वो सारे 9 हो जाएंगे. होना ही पड़ेगा, आप ऐड करते जाओ कुछ ना कुछ, है ना. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. राइट नाउ ये नंबर क्या है, 6,24,571, राइट. दिस इज 6,24,571, ये वाला जो नंबर है. अब इसमें 2 4 6 या 8 अगर आप ऐड करते जाओगे, इवेंचुअली यू विल रीच अ पॉइंट when all the digits will become 99999. लास्ट डिजिट चेंज कुछ होगा, लास्ट डिजिट होगा 1 3 5 या 7 में, बट बिफोर दैट फॉर द फर्स्ट 5 digits of that 6 digits will become 99999, all 9, राइट. बनता जाएगा ना, बनेगा ही बनेगा. यू कीप ऑन एडिंग देम, ठीक है. 2 4 6 8 करते जाओ, ये तो हो नहीं सकता कि सीधा स्किप होकर नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, राइट. सो गाइस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब आप 2 4 6 या 8 ऐड करते जाओगे, eventually you'll reach a stage when it will look something like this. O1 से लेके OM कोई unchanged है, E unchanged है, ठीक है. that D1 D2 सब क्या बन गया, 9 9 9 like this, 9 and DL. इसको DK की जगह कुछ और वेरिएबल नाम दे देते हैं. let's name that as Z only, कोई दिक्कत नहीं है ना. जो लास्ट डिजिट है वो Z बचेगा, where Z is either 1 3 5 और 7, है ना. उनमें से कोई एक रहेगा ना, ये तो दिक्कत नहीं है, ठीक है. बिकॉज आई डोंट नो कि क्या ऐड हो रहा है, 2 4 6 या 8 लास्ट स्टेप पे कौन सा ऐड हुआ, उससे पहले क्या था मुझे नहीं पता. बट जो लास्ट डिजिट है वो ऑड रहेगा 1 3 5 या 7 में से, और उससे पहले वाले सारे क्या बन गए, 9999 हो गए, राइट. दिस थिंग इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, आई होप. ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप ये स्टेप समझ गए तो क्वेश्चन डन है. कि आप अगर किसी ऑड नंबर में 2 4 6 या 8 कुछ ऐड करते जा रहे हो, इट विल इवेंचुअली बिकम 99999, राइट. बिकॉज अगर आप ऐड करते जा रहे हो गाइस, इवेंचुअली तो क्रॉस करेगा ना, ठीक है. ये बिकॉज ये जो नंबर है 3 7 5 4 2 एंड सम डिजिट, देन 0 2 4 6 होगा कुछ, तो दैट नंबर इज इवन ना, तो 2 4 6 8 से फॉर्म हुआ वो. सो गाइस नाउ व्हाट, इस स्टेप के बाद आगे क्या, कोई आरथ सीक्वेंस का आरथ नंबर है जो ऐसा दिख रहा होगा. अब क्या करोगे आफ्टर दिस वन, जब आप XR+1 देखोगे गाइस, जस्ट इसके अगले वाला मे बी, या फिर चलो अगले वाला भी नहीं, ये नहीं कहेंगे एग्जैक्टली अगले वाला, ओ सॉरी गाइस,
सॉरी गाइस, नॉट एग्जैक्टली इसके बाद वाला, मतलब इसके बाद या उसके जस्ट एक दो बाद वाला, हम ऐसे बोल सकते हैं. इट कैन बी दैट e is 2 and z is 1 ना, तो 3-4 बार ऐड करना पड़ेगा और e. तो गाइस यहाँ पे एक बात सोचो, इवेंचुअली अब सारे डिजिट्स 9 हो गए, सारे ऑड हो गए हैं, इवेंचुअली यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन इवन डिजिट, दैट इज e, है ना. बीच में जो e लिखा हुआ है दैट इज द लास्ट इवन डिजिट जो लेफ्ट बच गया है. अब आपको वो e ही ऐड करना है ना. कम से कम मैक्सिमम 4 बार से ज्यादा तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर e2 भी हुआ तो 4 बार भी ऐड किया तो z के साथ 4 या 5 बार ऐड करके क्रॉस कर जाओगे आगे. क्रॉस करने का मतलब क्या है गाइस, इवेंचुअली ये 9 के बाद जो z है, मतलब ये क्रॉस करेगा ना. इट्स लाइक 1990 स्कीम में हो आप 100 को क्रॉस तो करोगे ना. z को 2, 4, 6 या 8 जो भी e है वो आप ऐड करते जाओगे, इवेंचुअली इट विल क्रॉस दैट 100, है ना. 90s में हो, सो मल्टीपल टाइम्स आप ऐड करोगे अगर इवन डिजिट तो यू विल एक्सीड 100. सो गाइस आफ्टर सम एडिशंस क्या होगा, XR के बाद XS आपको मिल जाएगा. कैसा दिखेगा वो, O1 O2 अप टू OM तो होगा. सो सोच के देखो गाइस, बहुत सारे 9999 लिखे हुए हैं लेट्स से ऐसे, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे 5 है, अब आप इसमें 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा. देखो लास्ट डिजिट 7 हो जाएगा, और 2 ऐड किया 9 हो गया. बट इवेंचुअली तो आप क्रॉस करोगे ना. सो लेट्स से आपने इसमें 8 ऐड कर दिया, क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा. देखो 9 के कैरी फॉरवर्ड होता है ना वो 1 1, सो ऑल दीज 9s विल बिकम 0, है ना. 5 9 है, 5 zeros आ जाएंगे, एंड इवेंचुअली द लास्ट वन विल बेसिकली द लास्ट 9 विल बिकम 10. यही मतलब होता है, आपको पता ही है लॉजिक, तो नॉर्मल एडिशन है. तो सोचो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, जब ये सारे 9s हैं, z कुछ अगर ऐसा हो गया कि z के साथ ऐड करके वो एक्सीड कर गया 10 को, है ना. z डिजिट जो है लास्ट वो यूनिट डिजिट जो है उसमें आपने कुछ ऐड किया इवन नंबर, दो वो e ऐड कर रहे हो इफेक्टिवली नाउ, है ना. वो e को ऐड कर रहे हो जब आप, सो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा वो 10 को. तो इवेंचुअली क्या होगा गाइस, e की जगह e+1 हो जाएगा वहां पे, पहली बात तो, है ना. वो e इवेंचुअली वो 1 1 कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, तो e के ऊपर आके 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तो e+1 हो जाएगा. और ये वाले जो सारे 9s हैं दे विल बिकम zeros, राइट, दे विल बिकम zeros. और जो लास्ट में z है वो कुछ p आ जाएगा. लेट्स से अगेन p डिफाइन करता हूं, p ऑड है 1 3 5 एंड 7 अभी भी, राइट. अभी भी वो जो p है वो ऑड है, बिकॉज आई एम स्टिल एडिंग इवन नंबर्स. बट गाइस जो अब जो स्टेज आ गई है, O1 O2 अप टू OM, ये सारे ऑड डिजिट्स हैं. e+1 दैट इज ऑल्सो ऑड नाउ, इवन नंबर +1, और ये सारे क्या है, जीरोज हैं, है ना. ये सारे जीरोज हैं. ऑफ कोर्स आपको तो नॉन जीरो डिजिट ऐड करना है ना नंबर के अंदर, एंड p इज ऑड, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, p भी ऑड है. सो गाइस इवेंचुअली जो XS+1 होगा, वुडंट दैट बी ऑड, बिकॉज अब सारे डिजिट्स में जो नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, आइदर दे आर 0 और ऑल ऑड, है ना. तो नॉन जीरो डिजिट आपको ऐड नहीं करना है, फाइनली ऑड डिजिट ही ऐड करना पड़ेगा. सो XS+1 विल बिकम इवन. व्हाई, बिकॉज XS इज ऑड प्लस ऑड करोगे आप, बेसिकली तो ये मतलब बना ना. द रीजन बीइंग XS which is odd plus odd will be even. That is the reason. XS+1 finally even बनना पड़ेगा, ठीक है. So our assumption was wrong. It becomes contradictory कि सारे के सारे odd नहीं हो सकते, because हम वही मान के चले थे और फिर भी हमें कोई ना कोई एक even मिल ही जाएगा, as we proved, right? So guys, first of all I hope आपको first part समझ में आ गया इस क्वेश्चन का, that the sequence has an even number. तो हमने वो प्रूव कर लिया कि इवेंचुअली जाके कहीं ना कहीं गाइस कि XS+1 जो आएगा वो इवन मिलना ही पड़ेगा, राइट. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हो एज सच कोई साइंस यूज नहीं हो रहा है, मतलब इन द सेंस कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरम यूज नहीं हो रहा है, बट इट्स मोर ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग कि हो क्या रहा है जब आप 2 4 6 या 8 कुछ भी जो भी इवन नंबर ऐड करो, ऐड करना पड़ेगा जब ऑड के साथ, राइट. दिस इज व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, ऑर द डिजिट्स विल बिकम ऑड और जीरो, and then the next number will have to be even, right? I hope this thing is clear. तो guys A part तो हो गया अब आपका. Now second part is quite easy, बहुत easy है ना. कैसे बोल सकते हैं, यही चीज सोचनी है guys. The sequence has infinitely even numbers. अब आप क्या हो गए, let's say there is some last even number. Again इसको अगर प्रूव करना है या डिस्प्रूव करना है, आप बहुत सिंपली बोल सकते हो. Let me scroll down. तो guys let's say XM is last even, ठीक है, लास्ट इवन नंबर.
ये तो हमने प्रूव कर दिया ना कि कोई एक इवन नंबर तो आएगा ही आएगा. And let's say in the sequence xm is the last even number. So now if I define a series xn, okay, where n is starting from m plus 1 to infinity. Infinity तक जाना था ना हमें वैसे भी, infinite sequence terms है sequence के अंदर. If I'm defining the series like this xn, but n कहाँ से शुरू हो रहा है? उस m के बाद से. तो वो सारे और बोल रहे हैं. फिर अब अगर xm एक लास्ट इवन नंबर है, लेट्स से हमने यही बोला ना कि लेट्स से फाइनाइटली इवन नंबर्स हैं, इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइटली मेनी इवन नंबर्स, इफ देयर आर ओनली फाइनाइट इवन नंबर्स देयर विल बी सम लास्ट इवन नंबर. वो हमने मान लिया xm में. अब उसके बाद वाले सारे ऑड हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं. एंड फ्रॉम द ए पार्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन कि सारे के सारे ऑड हो ही नहीं सकते, है ना. दिस विल मीन दैट दिस हैज टू बी ऑड, ऑल ऑड, है ना, सारे ऑड होंगे. और उसके अंदर फिर से मैं ए पार्ट वाली टेक्निक लगाना प्रूव करने के लिए शुरू कर दूंगा, एंड इट विल बिकम रॉन्ग कि वो चीज हो ही नहीं सकती है, फिर से कोई ना कोई इवन आ ही जाएगा, विच विल मीन द सीक्वेंस इज हैविंग इनफाइनाइटली मेनी इवन नंबर्स. होने ही पड़ेंगे, है ना. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पे जाकर आप रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद वाले सारे ऑड हैं, फिर से वही चीज आप अप्लाई करोगे फिर फर्स्ट केस वाली, क्योंकि टर्म्स इनफाइनाइट हैं. तो उसके बाद जो भी लास्ट इवन नंबर है उसके बाद भी तो फिर से इनफाइनाइट ऑड नंबर्स आ रहे इकट्ठे, वो हो नहीं सकता. वो हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी ए पार्ट से. सो दैट इज द रीजन यू विल से द सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी इवन नंबर्स. तो वो भी प्रूव हो जाएगा इस तरीके से. सो इट्स वेरी मच लॉजिकल एंड यू नो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का लॉजिक है यहाँ पे. करेक्ट. कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मतलब आपको लगे कि ये तो मुझे लगता है 7th 8th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, उसके पास सोचने की सोचने की एबिलिटी है इतना. तो somehow you can think about this kind of a question because इसमें ना कोई थ्योरम ना कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज नहीं हो रहा है ना. इट्स जस्ट अबाउट कॉमन सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग, राइट. सो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और मजा आया आप सबको. एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज एंड मजा आ रहा है अगर आपको, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. वीडियो को लाइक कर दो भाई, है ना. सो इट विल गिव अस इट विल बूस्ट अवर मोरल, दैट्स इट. और कोई पर्पस नहीं है हमारा, ठीक है. और हम ये चाहेंगे कि आप अगर हमारे साथ चैनल पे हो तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, बिकॉज वी डू ट्राई टू प्रोवाइड जेन्युइन थिंग्स दैट विल हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज, राइट. और इन स्पेसिफिकली दीज थिंग्स आर फॉर मैथ्स ओलंपियाड. और एनीवेज जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं it is for some particular purpose which will help you in some way academically. If you're interested, please watch them, right. So guys, I hope sabko ye maza aaya. We have done 5 questions of INMO 2005 so far. So one question is left that we'll be doing in the next video, okay. So you can also try the question before seeing the video, but I will suggest don't see the solution anywhere. अगर हो गया then that is well and good, लेकिन अगर question solve नहीं हो पाता है, don't see the solution anywhere else. Watch the video, next video, and let me explain the question first, ताकि आपको question भी अच्छे समझ में आ जाए solve करने से पहले, try करने से पहले, okay. All right guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Take care guys. So guys, we are launching IOChem Achievers batch. Okay, this is IOChem Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOQM. ठीक है, IOChem Achievers is the name of the batch, and it is classes are starting from July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay, the course will be taken by all 3 of us, Abhay sir, me, myself, and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay, in the starting 1 month I'll be teaching the course, then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months, and after that we'll not leave you, don't worry about it. ठीक है, इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे, and after that in the last 1 month we'll have a camp in which we'll be helping giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM, okay, and a whole lot of tests, right. I'll tell you more about those details in the coming slides. ठीक है, so that is the name of the batch. And yes guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on, don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right. जो एग्जाम होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को एग्जाम होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit lesser number of questions.
are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys 10 questions of 2 marker 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. Last year तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. Next is 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area and that constitutes of 60% of the exam. 60%. Okay. And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper. 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए? What should be your approach for the exam? Exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना? मैं नए students के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic. ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority. ठीक है, priority किसको देनी चाहिए according to me. See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher. ठीक है, and for writing INMO that depends upon your region, है ना? All those things are given on the site. You can have a look at them. For her region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 plus marks. Generally बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काफी states में कम भी जाएगा बहुत. हो सकता है 20 से भी कम चला जाए. But I am just suggesting from my end that if you target for 40 plus or 35 plus marks, 35 to 40 plus marks, ठीक है, let me edit this. So 35 to 40 plus marks, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 plus marks कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना? I would suggest you focus or you know aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks. ठीक है, which should amount to 16 marks. And then at least solve 5 markers. Guys 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना practice कर लो, इतना solving कर लो that you can solve at least 5, है ना? 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना? And now you can simply addition सबको आती है, right? So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है? इफ यू मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन पिक अप पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं, यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, so that you will get relaxed and then you can solve the further questions as well. ठीक है, this is just a strategy. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, then you can of course then move on to the 10 markers. So guys, but मैं आपको ये बताना चाहूंगा, you should always prioritize. इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो. इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 markers, then 5 markers, then come to the 10 markers if time is left. Okay, but तो वो बहुत जरूरी है. Try to understand and how to prioritize. Okay, so that is it about the exam guys. Exam कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 marker, 5 marker and 10 marker आने वाले हैं. So there are total of 24 questions this time. So 6 questions कम हो गए हैं, you get more time, right? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers. ठीक है? We'll be also starting with the series of 10 marker questions as well. ठीक है? तो वो आप YouTube पे देख सकते हो every week, है ना?
तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 मार्कर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन IUQM. Okay, that you can get an idea. Okay, so guys, by doing these courses only in the last year we had a tremendous result, है ना, बहुत अच्छा result रहा था last year. We had total of 798 of our students getting IUQM certificates, getting qualified through IUQM. जो मैंने आपको बताया 20% marks उन्होंने score किए थे, right? And out of the total number of students, that is like हमारे पास जितने students थे 1500 1600 something of our students gave the exam, right? Wrote the exam. So basically every 1 out of 2 student of ours got certificate in IUQM, right? मतलब हर 2 में से एक student certificate लेके आ पा रहे at least, right? And we think that is a big thing and we are happy with that and we like to continue with these things. rather better करना चाहेंगे हम उस ratio को, right? And then guys, 46 of our students got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना? But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal. Okay, so that is a big thing. Big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay, so that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे. जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern. Mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys, then after that, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IUQM, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. Okay, everything will be provided to you. Assignments होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी. करेक्ट? सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सॉल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सॉल्यूशन एज वेल. ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. ओके, एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स एज आई सेड फॉर एवरी
topic and every chapter you'll get a assignment. Okay, that we'll have to solve. And other than that guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker and 10 marker questions. Okay, but other than that, if you want to have some revision also according topic wise or something, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOCAM Achievers batch. Okay, and the last thing guys, coming to the pricing, right? As I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है? So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes guys, in this course I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है, this course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. बेसिक्स आने चाहिए क्लास 9, 10th मैथ्स तक के. बट अदर देन दैट विल टेक इट अप. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th क्लास मैथ्स, दोज टॉपिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. बट द अदर टॉपिक्स वुड लाइक, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स मच बेटर. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप सबको फायदा होगा. ओके, एंड आई होप आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 मंथ्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर एम ऑफ क्वालिफाइंग फॉर IOQM. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज. विल सी यू इन अवर सेशंस, इफ राइट. थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर.